بھائی بہت میں ہی آپ زبردست. بولوں، انہوں نے تو آج دھماکہ کر دیا. میں کیا بولوں، میں کیا بولوں، میرا دل خوش ہو گیا آج. تو میں بہت خوش ہوں بھائی ان جینٹلمینوں کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے میں جو باتیں کی ہیں کہ دل خوش کر دیا. میں تقریباً 10 سال سے اس دین کو نہیں مانتا ہوں، کیونکہ میرا ماں کو توہین کیا، میرے بہن کو توہین کیا، مجھے توہین کیا، سارا میرا وطن والوں کو توہین کیا ہوا ہے. مجھے مار کے، میرا وطن والوں کو مار کے یا ربوں نے یہ دین ہم لوگوں کو یہ تلوار کے ذریعے سے ہم لوگوں پر قبول کیا ہوا ہے. ہاں I'll پوری go and get my انسانیت کی cold توہین. coffee. I'll get back. I'll be back, Uzi. I'll just go and get some coffee. اوکے کہ پوری انسانیت کی توہین ہے نا اس میں. جو کوئی مسلمان نہیں ہے، جو کوئی اسلام اور اللہ رسول کو نہیں مانتا، تو اکارڈنگ ٹو قرآن وہ انسان نہیں ہے. تو انسانیت صرف جو ہے وہ ہیں جو کہ اللہ رسول کو مانتے ہیں. جب قرآن پڑھیں عربک کے ترجمے کے ساتھ، عربک کے ساتھ، آپ کو پھر یہ معلوم ہوگا کہ اگر کوئی اللہ رسول کو نہیں مانتا تو جو ہے وہ انسان ہے ہی نہیں. تو ہمارے پاس جو ہے یہ نئے آئے ہیں نظر. ہاں جی آپ بات کریں. السلام ایک علیکم. منٹ رئیسہ، ایک منٹ ذرا، ابھی اس کی کو آ جائے تو پھر آپ ان کے بعد بات کر لینا. ہاں جی بولیں، آپ کیا بات کرنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، یہ جو صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک عورت کو مار دینا، کہ عورت جو ہے وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے اچھا پہلے کہ یہ اس کو مار بتائیں، دیا جائے. پہلے تو میں آپ سے انٹرویو لیتی ہوں. آپ نے عربک کے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا ہوا ہے؟ عربی کے نہیں، ترجمے کے ساتھ تھوڑا سا سمجھا ہوا ہے. کتنا سمجھا ہوا ہے؟ اور عربک آتی ہے آپ کو؟ گزارا کر کے لیتے ہیں. اچھا آپ نے پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پورا قرآن عربک کے ترجمے کے ساتھ نہیں معلوم آپ پڑھا؟ عالم نہیں ہے، سیکھنے کے پروسیس میں آپ جیسی معلمہ جہاں بیٹھی ہوں. عمر اگر میں پوچھ لوں تو آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر ہے 52 ایئر اولڈ. 52 ایئرز اولڈ. آپ پاکستان میں ہیں یا کہیں باہر ہیں؟ نہیں، میں پاکستان میں ہی ہوں اس وقت. اچھا تو 52 ایئرز کے ہیں اور آپ یہاں پر آئے ہیں اسلام پہ بات کرنے کے لیے، اور آپ نے خود جو ہے وہ عربک کا قرآن اور ترجمے کے ساتھ خود کچھ نہیں پڑھا ہوا، نہ آپ کو آتا ہے، تو آپ کس بیس پہ آئے ہیں یہاں پہ سوال کرنے کے لیے؟ میں اس بیس پر آیا ہوں کہ ایک عالم سے کچھ سیکھ لوں. معلمہ بیٹھی ہوئی ہیں نا، معلمہ، آپ معلم ہیں نا، آپ معلمہ. آپ جائیں اپنی گاڑ مروائیں پہلے، اور آپ اپنے دیکھیں کہ آپ کے ٹٹے جو ہیں کلف کیے ہوئے ہیں یا ایسے ہی آ گئے بغیر دھوئے ہوئے. یہ تو توہین ہے کسی کو علماء اور پیغمبر کہ پیغمبر نے زنا کیا ہوا ہے اور علماء کوئی بھی زنا کرتے، یہ توہین ہے. ہم لوگوں کو بولتا ہے علماء ہر دن مسجد میں قرآن کے نیچے ہی زنا کرتا ہے. بات یہ کہ میں سوال کیوں کرتی ہوں پہلے کہ بھئی آپ نے قرآن عربک کے ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوا ہے کہ نہیں، تو پھر آگے بات ہوگی. بغیر دیوار پہ سر مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جب اگر آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے عربک کے ساتھ ترجمہ، ہم تو پڑھ کے بیٹھے ہیں نا. 20 سال سے اوپر ہو گئے، 25 سال ہو گئے میں نے اسلام کو چھوڑے ہوئے، اور 20 سال سے میں نے باقاعدہ 20 سال میں نے باقاعدہ لگایا قرآن و حدیث، قرآن عربک کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھ کے پورا میں نے لگایا ہوا ہے. یہ سارے ریفرنس وغیرہ سب کچھ میں نے نوٹ بنائے ہوئے ہیں. اس کی نے بھی سارا سب کچھ پڑھا ہوا ہے، سارا سب ہم پڑھ کے بیٹھے ہوئے نوٹس بنا کے. ٹھیک ہے نا؟ مسلمان ہوتے ہوئے، Uzi مسلمان ہوتے ہوئے میں نے ایسے ایجوکیٹ اپنے آپ کو نہیں کیا جتنا کہ چھوڑتے ہوئے مطلب ہو گیا یہ چیز. کین یو امیجن؟ یس نا، ہم تو اس وقت تو مسلمان تھے، پکے مسلمان تھے جب ہم سیکھ رہے تھے، باقاعدہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے سیکھ رہے تھے. یہ نہیں کہ کسی سے کوئی بات مطلب کہ ہم ڈیبیٹ کرنی ہے، نہیں، ہم تو سمجھنے کے لیے پڑھ رہے تھے. یہ وہی نا تو جی. 2-3 حج اور 10-12 عمرے کرے ہوئے ہیں پورا ان کے سسٹم کو دیکھ کر. آپ بھی سعودی عرب رہی ہوگی، آپ کو بھی بہت معلوم ہے ان لوگوں کے بارے میں. ہاں عمرہ حج وغیرہ سب کچھ کیا ہوا ہے عربی میں، سارا سب رہے. تو مطلب یہ والی بات. اور یہاں پر یہ جو آتے ہیں ایسے لوگ، جیسے بھی یہ آیا تھا ناظر کہ نہیں علماء نا، علماء بات کر رہے ہیں، دانت تو مطلب یعنی کہ 52 سال کا ہو گیا بڈھا، اور یہ ہے کہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم سیکھ رہے ہیں. تو بھائی تم کس منہ سے لے کر آئے ہو یہاں پہ اسلام کے بارے میں بات کرنے کے لیے؟ تمہیں یار ہم اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے. کوئی علماء تو نہیں ہے، ہم لوگ وہی ایک جو ہم کو نالج ہے ہم وہ شیئر کرتے ہیں. جیسے کہ آپ لوگوں کے پاس بھی
अमेजिंग नॉलेज है। मैं तो समझती हूँ कि हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि आई एम ऑल नोइंग, मुझे सब कुछ पता है तो मैं सबसे ये हूँ वो हूँ। नहीं 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 नहीं, यही तो मुझे लाइव्स का जो मुझे अच्छा लगता है कि इतने मुख्तलिफ किस्म के लोग आते हैं कि मैं सबसे सीख सकती हूँ। मुझे आप यकीन करो, जब शुरू में जब मेरा इस्लाम जब छोड़ा था, जब मैंने लाइव कॉल्स लिए थे, तो एक मुसलमान मेरे लाइव पे आके बातें करके चले गया। बहुत सा एक लंबा अच्छा खासा लाइव गया था, तो क्वेश्चन पिंग पोंग आगे पीछे डिस्कशन डिबेट कर लो जो भी कहो उसको, उसने किया। जब वो वहां से गया तो बड़े फखर से गया कि आई ग्रिल्ड हर एंड दिस एंड दैट, बल्कि उसने ये रियलाइज नहीं किया कि आई काइंड ऑफ लर्न समथिंग फ्रॉम हिम, जो कि उसने रियलाइज नहीं किया कि उसने मुझे कुछ सिखा के गलती कर लिया फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो ये समझा कि मैंने कुछ चीज नोट नहीं किया, बट आई ऑलवेज एजुकेट, आई एम वेरी क्यूरियस पर्सन। तो जब वो वहां से किया तो उसने ऐसी एक बात करके चले गया जो मैंने सोचा ओ ये भी है, और उसकी उसी बातों की वजह से, हरकत की वजह से मैंने जब कुरान को रिसर्च किया तो पता चला कि उसमें एक और एक फ्लॉ है। मुझे उसकी उस बिहेवियर से वो समझा कि मैं पता नहीं कौन सा जीत के गया। यू नेवर विन इन अ डिस्कशन, यू नेवर विन इन अ डिबेट। आप सिर्फ वहां से सीख के जा, उसमें हारना जीतने का कोई बात नहीं होता। ये जो लोग हैं ना जिनका थोड़ा सा आईक्यू है, उनको ये पता होगा कि दिस इज व्हाट इट इज। इट्स नॉट अबाउट विनिंग एंड लूजिंग, इट्स अबाउट लर्निंग समथिंग कि ओ अच्छा इस तरह से भी है। उस बंदे ने एक बात बोली कुरान की ग्रामर की, ये हम लोग किसी और दिन बात करेंगे। उसने कहा कुरान में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये वो। खैर उस वक्त मुझे पता नहीं था इन चीजों का, तो मुझे जब मैंने गौर किया तो पता चला कुरान के अंदर एक और एक चीज जिसमें जो है इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। जबकि फिर मैंने जब दूसरों से बात करना शुरू किया, दूसरे मुसलमानों से, तो पता चला उनको भी पता नहीं था। तो मगर द पॉइंट इज कि कुरान में एक गलती नजर आ गई, जो कि हम आपको फिर, जिनको अगर नहीं पता, फिर हम वो पेश करेंगे एक दिन कि कुरान में वो जो ग्रामेटिकली जो इशू है, प्रॉब्लम है, वो क्या है। सो आई रियली लव द फैक्ट कि कुछ लोग आके कुछ बातें करते हैं, मैं भी सीखती हूँ, और बहुत से आहा मोमेंट्स होते हैं जो कि कभी कुछ दूसरा हम लोग खुद बैठ के सोच नहीं रहे होते, दूसरा बंदा आके कुछ कह देता है जो इंसान हत्ता पत्ता रह जाता है, ओ रियली। तो मैं कहती हूँ कि प्लीज बी ओपन माइंडेड, हम सबसे सीख सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट उसी से कौन हारेगा, मुझसे कौन हारेगा, इसमें हारने जीतने की कोई बात नहीं है। हम आखिर मरते दम तक हम कुछ सीखे दुनिया से तो बहुत बड़ी बात है, ये चीज हमको लेके चलना चाहिए, ठीक है। जी, तो जी। ये क्योंकि याद है ना आपको उजी वो जो लाइव में हुआ था, जो उसने बंदे ने कहा था, यू नो दैट ऑन माय चैनल राइट, जो कि उसने कहा था अल्लाह इज नॉट अ मशीन, डू यू रिमेंबर? अल्लाह इज नॉट अ मशीन, ही सेड। हाँ अल्लाह इज नॉट अ मशीन, यस आई रिमेंबर दैट। इसकी बहन मैं बहुत ज्यादा आयात मेरे पास है। मैं किस आप मुझे फॉलो करके, मैं आपको फॉलो करके, और उसी बहन को आप हम लोगों के ब्रॉड में भी आ सकते हैं। एक मिनट भाई, आप मोइन भाई आप अपना माइक बंद कर ले। फॉलो कर। एक मिनट रही सब, एक मिनट। I thought it was my turn. एक उसी, मिनट, आपने एक कहा मिनट, जब उसकी आएगी। एक मिनट, मुझे ये बात कर। सिस्टर एक सेकंड, यू विल बी। जी भाई, आप हम लोगों का लाइफ में आके, हम लोगों का उधर 500 600 1000 लोग उधर बैठा हो, यूट्यूब में भी इसी तरह हम लोग बातें कर रहे हैं। हम लोगों का टीम जो है उधर, आप शिरकत करके आप बात कर सकते हैं, उधर आपको प्लेटफॉर्म आप भी मिलेगा। ज्वाइन। और रईसा बहन से मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ, अगर ये अपना माइक खोल दे और मेरे साथ अगर उसी कुछ कहना चाहती है, उसी आवाज नहीं आ रही है क्या? बात। हाँ उसी प्लीज। मैंने कहा आपका यूट्यूब क्या है? फ्री थिंकर्स जनरेशन। अच्छा, आपके डिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है, वो लिंक दिया हुआ है। हाँ, वो अगर आप फ्री थिंकर्स जनरेशन सर्च करके, वो सारा वीडियोस और हम लोगों का लाइव आता है आप लोगों के पास। फारसी में होता है, उर्दू में होता है, इंग्लिश में होता है? फारसी में होता है, मगर आप अगर आ जाते हैं उर्दू में भी बात कर सकते हैं उधर। मेरा फारसी टूटा हुआ है ना भाई, मेरा फारसी इतना अच्छा नहीं, आप उर्दू में बात कर सकते हैं, फिर मैं उधर आ जाऊंगा, मैं आप लोगों का ट्रांसलेट कर सकता हूँ। आप उधर आ जाए, या चाहे लेडीज, जितना लेडीज आ जाए वो इस्लाम को नकद करके, ये बहुत अच्छा है। लेडीज फारसी में शिकश्ता है ना, फारसी में कम शिकश्ता है ना, मैंने जो उर्दू और फारसी में मुश्किल नहीं, आप उर्दू बात कर सकते हैं या इंग्लिश में बात कर सकते हैं। रईसा बहन से मैं एक बात करना चाहता हूँ। एक छोटा सा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है, अगर मुझे ये जवाब दे कि फिर मैं जाऊंगा। फिर आप अपनी बात रखिएगा। रईसा, इज इट ओके विथ यू?
सोसाइटी ऑफ एथियस्ट ऑफ द मैं भी पोहनमल साहब से एक सवाल करती हूँ तो और ऐसे करें एक सेकंड सिस्टमैटिक चलने के लिए सुपर एक सिस्टम और रईसा आप बिल्कुल अपना बात रखें फ्री थिंकर यू से व्हाट यू वांट टू से और जब रईसा ने उसका जवाब दे दिया फिर रईसा आपसे एक सवाल करेंगी ठीक है सही है, सही है। यू विल नॉट क्रॉस वन अनदर इन अ वे सही है, इन सही है। रॉन्ग वे सही है, बिल्कुल सही। उसी इज इट ओके ये इट्स ओके, लेकिन ये नए आए हैं मोइन करके, वो भी उनसे भी बात कर लेते हैं। मगर रईसा काफी देर से बैठी हुई वो कुछ कहना चाह रही है लेट्स टेक हर इन तो इट्स गोना गो लाइक दिस फ्री थिंकर इज गोना आस्क रईसा ने जब जवाब दे दिया बात वो खत्म हो गई फिर रईसा अपनी बात रखेगी ऑलराइट सो व्हाट्स योर क्वेश्चन फॉर रईसा एंड देन रईसा विल मुझे छोटा बात रईसा बहन अपना माइक खोल दे हम लोग नहीं ठहरिए पहले आप अपनी बात रखें एंड देन शी विल आंसर नहीं मुझे बात अपना माइक खोल के मुझे बताए बिल्कुल दो सवाल बहुत आसान सवाल तो रखो फ्री थिंकर रखूंगा वो सोसाइटी ऑफ एथियस्ट था हम लोगों का यूट्यूब का नाम सोसाइटी ऑफ एथियस्ट जी सवाल क्या है सवाल ये है मेरा रईसा से कि रईसा तो नमाज पढ़ता है 100% क्योंकि मुसलमान है नमाज में कौन सा आयत पढ़ता है वो मुझे एक बार बताए फिर मैं उससे सवाल करता हूँ कौन सा आयत पढ़ता है इस नमाज में रईसा पोहनमल मैं आपका इस सवाल से जवाब देना सही नहीं समझती क्योंकि यहाँ इस्लाम पे बात नहीं होती मेरे नमाज पे नहीं होते पर्सनल थिंग्स इज पर्सनल नहीं ये पर्सनल नहीं है नमाज तो बहुत पर्सनल आपका चाहे मैं नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं ये बहुत आपका पर्सनल दीन का सुतून है नमाज में कौन सा देखो आयत शायद पढ़ते मैं हैं नमाज नहीं पढ़ती चलो मैं नमाज नहीं पढ़ती बस आपको खुशी हुई ना आप नहीं ये तो मुसलमान है आपसे नहीं एक मिनट नहीं अपने आप अभी भाग रहे हैं मेरे सवाल से नहीं भाग रही है भाग रही है आप मुझे नमाज नहीं आती Free thinker, she doesn't want to answer that question, which is fair enough. Let's take another question. मैं अपना सवाल डालना चाहता हूँ रईसा बहन आपको सूरह फातिहा आता है देखो आपने एक सवाल कहा ना मैंने जवाब दिया कि नहीं, मुझे वो जवाब नहीं नहीं है आती वो नमाज। मैंने अपना सवाल नहीं डाला हुआ है मैंने इसीलिए बोला कि आप अपना माइक खोल दे आपको सूरह फातिहा पता है आपको आता है नहीं सूरह नहीं मुझे पता नहीं देख लें इसको सूरह फातिहा अभी तक नहीं पता है ये आते हैं दीन से दिफा करते हैं सूरह फातिहा तो सूरह फातिहा जो है वो तो ये है ना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल नहीं ये नहीं है इसको नहीं आता है नहीं ये नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं तो मैं सवाल कर सकती हूँ ये तो सवाल अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बारी है ना मैंने जवाब दिया ऐसी ये तो इंसाफ नहीं है ना मैंने कहा मुझे नहीं आती अब मेरे सवाल का जवाब देना है इसका ना एक सेकंड रईसा इंसाफ है इसकी रईसा मैं आपको देती हूँ एक सेकंड सबसे पहले मैं करेक्ट करूं मैंने जो है ना सुबाना कला पढ़ा ना वो तो शुरू का पढ़ लिया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गलत हो गया मुझसे वही बात है नमाज का ना भूल हो गया नमाज शुरू करते हुए सुबाना कल्ला हुआ भी हमदी का वत्ता बारक अस्मु का वत्ता अला जदु का वला इलाहा गैरुक ये होता है और फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम आमीन दैट्स इट गॉड ओके फिर बात होता है फ्री थिंकर आप फिर ये बताओ देखो ये हाल है आपका लेट मी आस्क यू इन अनदर वे बिफोर वी गिव द माइक टू रईसा बिकॉज ये जो है ये जवाब देना इनके पास जवाब नहीं है या देना नहीं चाह रही है विच इज फेयर इनफ शी हैज द राइट टू डिक्लाइन इट तो आप ये बताएं आपका इस सवाल के साथ मकसद क्या है ये बोलते हैं मैं जवाब नहीं देता मैं इसको आगाह नहीं करना चाहता क्योंकि देख लें सारा इसी तरह जो इस्लाम से बिल्कुल उसको पता नहीं देखो कितना आसान सवाल किया हुआ है मैंने जो कोई आदमी को आप अगर मुसलमान को रोक ले बोलते हैं सूरह फातिहा पढ़ ले वो पढ़ सकते हैं मगर रईसा इस्लाम से दिफा करके इस्लाम आता है कि मुझे इस्लाम से दिफा करना है और मुसलमान हो सूरह फातिहा इसको आता है 100% मगर उसको शर्म आता है हम लोग के ब्रॉड में आप आके 100 लोग मुसलमान आते हैं उसको बोलते हैं आप लोग मुसलमान है वो शर्मिंदगी से बोलता है कि मैं इंसान हूँ बोलता हूँ मैं आपका मजहब या इस दीन कौन सा है फिर आखिर में बोलते हैं मैं मुसलमान हूँ
क्योंकि वो शर्माता है, शर्म उसको आता है इस्लाम से। अभी रईसा को भी शर्म आ गया कि सूरह फातिहा को मैंने कितना आसान सवाल किया, वो बोलता है मैं जवाब नहीं देना चाहता, और उसको पता भी नहीं, इसको नहीं आता है सूरह फातिहा। 100% मैं आपको बोलता हूँ, अभी चैलेंज करता हूँ कि इसको सूरह फातिहा नहीं आता है। जी सिस्टर, ठीक है, let it go. मेरा, it's my Raisa, time Raisa. to ask him a question, right? Absolutely. Can you एक सेकंड we will talk about whatever it is later on. ये सूरह फातिहा बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे भी हम लोग किसी दिन बात करेंगे. Now it is done, उस तरफ अभी नहीं जाते. Raisa sister, you have a question, please go with it. Thank जी you. बोले. Most welcome. Pohanmal, can you please explain, it's a मुझे very इंग्लिश simple नहीं आता है, question. मुझे इंग्लिश नहीं आता है। अच्छा, sorry, मुझे पता भी नहीं चला कि मैं इंग्लिश में, it's my default language. So, पोहनमल साहब, आप कर सकते हैं कि मुझे बताओ कि ये फ्री थिंकर एंड सूडो फ्री थिंकर के बीच फर्क क्या होती है? बस मेरा यही एक सवाल है। फ्री थिंकर, सूडो फ्री थिंकर क्या है? सूडो फ्री थिंकर एंड फ्री थिंकर में फर्क क्या होता है? सूडो फ्री थिंकर में तो अभी आपसे सुन रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल। सूडो सूडो क्या है? आपको बता देती हूँ कि सूडो फ्री थिंकर क्या होता है। It's someone, रेफरेंस के साथ बिल्कुल। बिना रेफरेंस के इधर अपना पेट से बात नहीं कर सकते हम लोग। सूडो फ्री थिंकर आपने ये बोला रईसा, I just want to understand because I'm writing it down. बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि there is free thinker and there is pseudo free thinker. जी बोले. मेरा सवाल पोहनमल से ये है कि अब मुझे बताओ कि फ्री थिंकर एंड सूडो फ्री थिंकर में क्या फर्क होती है? ये मुझे इस बहन, ये मुझे सूडो फ्री थिंकर से रेफरेंस के साथ, अपना पेट से नहीं रेफरेंस के साथ इधर कैमरा लगा के बोलता है कि ये सूडो फ्री थिंकर है, मौजूद है। सूडो फ्री थिंकर क्या है भाई? मैं लिख रही हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बोले आप सिस्टर. वेरी नाइस. ये पहला ठहरे प्लीज लेट हर टॉक प्लीज, आई वांट टू हियर. जी सिस्टर. ओके, सो देयर इज फ्री थिंकर ना। पोहनमल साहब, आपको तो फ्री थिंकर का पता है, तो मुझे फ्री मुझे थिंकर पता है, मगर सूडो फ्री थिंकर आपको इधर स्क्रीन पे लाना पड़ेगा रेफरेंस के साथ। नहीं, मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। मैं सूरह फातिहा जाके सीखूंगी एंड आप सूडो फ्री थिंकर के बारे में एक मिनट। सूडो का मतलब होता है वो क्या प्रिटेंड करने वाला, कोई प्रिटेंड कर रहा है या कोई फॉल्स है. सूडो फ्री थिंकर का मतलब होता है कि अपेयर्स टू रिजेक्ट ट्रेडिशनल बिलीव्स, जो मतलब मैं उर्दू में बताती हूँ कि सूडो फ्री थिंकर का मतलब ये होता है कि समवन जो कोई अपना जो दे आर थिंकिंग इंडिपेंडेंटली, खुद मुख्तारी से अपना कुछ बिलीव करते हैं, बट इन रियलिटी उनके जो, आप मेरी बात सुन लेंगे? हाँ प्लीज उसी बात करो, प्लीज म्यूट एवरीवन, थैंक यू जी उसी. क्योंकि फिर मुश्किल हो जाता है फिर मेरा बात करना, और स्पेशली यहाँ पर का सुबह के 3 हो गए हैं. हाँ बोल लाली. एक मिनट, तो मैं आप लोग के लिए आसानी कर देती हूँ कि इसको उर्दू में बता देती हूँ मैं आपको कि एक जो सूडो फ्री थिंकर होता है कि एक झूठा आजाद ख्याल, वो शख्स होता है जो ये समझता है कि वो खुद मुख्ताराना तौर पर सोच रहा है, लेकिन हकीकत में उसके ख्यालात अब भी समाजी रवायात, बासर शख्सियात या ग्रोही जो ग्रुप जो शनाख्त होती है उससे तश्कील पाते हैं, महदूद होते हैं या उनसे शदीद तौर पर मुतासिर हो जाते हैं. यानी कि वो समझते हैं अपने आप को कि वो आज़ाद ख्याल हैं, वो खुद मुख्तार हैं, लेकिन वो हकीकत में वो उनके जो ख्यालात हैं वो किसी समाजी रवायात या बासर शख्सियात या किसी ग्रुप से मतलब मुंसलिक होते हैं, या उनका जो बड़े शदीद तौर पर उससे मुतासिर होते हैं. समझ लें, सूडो वो होते हैं जो अपने आप को समझते तो खुद मुख्तार हैं लेकिन होते नहीं हैं. अंडरस्टैंड? और हाँ, फ्री थिंकर जो है, फ्री थिंकर का एक ही मकसद है
جو اپنا ذہن میں وہ فری ہے، ہر چیز کے بارے میں شک کر سکتا ہے، بات کر سکتے ہے. اوڈو فری تھنکر جب اس نے آپ نے اگر یہ بات ہاں یہ سوڈو کا مطلب ہوتا ہے کہ سوڈو کا مطلب سمجھ لیں کہ وہ جو انگلش کا ورڈ ہے کہتے ہیں جھوٹا، ہاں یعنی کہ جھوٹا. جھوٹا، ہاں جھوٹا ابھی تک فری تھنکر ہی نہیں ہے. جو کوئی جھوٹ بولتا ہے اس کے ذہن میں کوئی چیز کا، نام کا، کوئی ریلیجن کا، کوئی چیز کا بھی وہ اس پر عقیدہ رکھتا ہے، وہ فری تھنکر نہیں ہو سکتا ہے. یا ابھی چاہتا ہے رئیسہ کہ ہم لوگوں کو اگلی طریقے سے توہین کرے، کیونکہ اس کو سورہ فاتحہ اس کو نہیں آتا تھا. سورہ فاتحہ میں آپ کو اس بہن میں ابھی آپ کو بولتا ہوں کہ 100% یہ ابھی فری تھنکر کا معنی میں آپ کو بتاؤں گا ایک بہت سی اچھا مثال کے ساتھ ہی. آپ اگر سورہ نساء آیت نمبر 34 اگر پڑھ لے، ادھر بولتا ہے کہ اگر آپ اپنے بیوی کے یا بیگم پر شک کیا ہوا، شک وہ اس نے ابھی تک غلط کام نہیں کیا ہوا ہے، شک کیا ہوا ہے کہ وہ غلط کام کرنا چاہتا ہے، تو آپ اس کو پہلا دفعہ نصیحت کر کے، پھر اپنا بستر سے جدا کر کے، پھر کیا کریں، اس کو مار دے. اگر شک کرے کہ وہ نافرمانی کرتا ہے آپ سے نا، شک کر لے اس نے ابھی تک نافرمانی نہیں کیا ہوا ہے وہ لیڈیز، تو پھر کیا بولتے ہیں اللہ اس کو بولتے ہیں مار دے. یہ میرا آزاد، یہ میں فری تھنکر کے بحث میں بولتا ہوں، کیوں میں عورت پہ پہلی دفعہ میں اس سے شادی کر کے اس پہ پھر میں کیوں شک کروں، میرا اعتبار ہی نہیں ہے. اور میں اس پہ کیوں اس پہ شک کروں، اور یہ خالق کا کون سا کیا ہے اس کا نام ہے، عدالت ہے کہ اللہ کا کہ عورت کو مار دینا چاہیے. یہ کون سا عدالت ہے اللہ کا؟ کیوں میں عورت کو مار دوں کہ میں اسی عورت سے پیدا ہوا ہوں کہ میرا ماں ہو سکتا ہے، اور جو کوئی میرا بیگم ہے وہ میرا بیٹا اس سے پیدا ہو سکتا ہے، کیوں میں اسے مار دیتا ہوں؟ اور یہ نافرمانی ایک ہی بات ہے، اس عورت نے ابھی تک نافرمانی نہیں کیا ہے، مگر مسلمان لوگ کیا بولتے ہیں، اس کو بایت قبول کرے، کیونکہ یہ آیت اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے. وہ اپنا بیگم کو ابھی بھی ہم لوگوں کا ملک میں، پاکستان میں، انڈیا میں اور افغانستان میں مار رہا ہے. سب آدمی اپنا بیگم کو مارتا ہے. اور آیا یہ کہ کوئی مسلمان اس آیت پر اگر کیا چیز ایمان لاتا ہے، تو وہ رئیسہ بیگم اگر کسی سے شادی کر کے وہ اس کو مار دے، وہ شک کرے کہ امریکہ میں رئیسہ نافرمانی کرتا ہے، اس سے وہ شک کرے، اس کو مار دے، وہ قانون تو ادھر انسانیت کا قانون ہے، کس طرح اس کو مارتا ہے؟ پھر یہ لوگ جدا ہوتا ہے یا اپنا شوہر کو بولتے ہیں نہیں مجھے مار دے، کیونکہ آیت نمبر 34 میں لکھا ہوا ہے مجھے مار دے، مشکل ہی نہیں ہے. نافرمانی کا ایک ہی ہے، اگر آپ کا شوہر آپ کو بولے ایک گلاس پانی لائے، اگر آپ نے نہیں لایا، پھر وہ شک کرتا ہے، وہ آپ کو مار سکتا ہے، ایک گلاس پانی کے اوپر بھی آپ کو مار سکتا ہے. یہ نافرمانی، اور آپ نے نافرمانی نہیں کیا ہوا ہے. گلاس پانی اس نے جب چاہیا ہوا ہے، وہ پہلے سے جو آپ کو بولے کہ مجھے ایک گلاس پانی لائے، اس پہلے سے وہ فکر کرتا ہے کہ اگر میں اپنا بیگم کو بولوں کہ ایک گلاس پانی لاؤ، وہ شک کرتا ہے کہ یہ نہیں لاتا ہے میرے لیے، پھر اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے. یہ دیکھو، یہ اللہ کا قانون ہے. میں ایک فری تھنکر کی بحث میں یہ چیز کو رد کرتا ہوں. میں بولتا ہوں میرا بیگم پہلے سے ہی میں اس کو جانتا ہوں، جو میں نے اس کے ساتھ شادی کیا ہوا ہے وہ میرا نافرمانی، اور میں اس کا نافرمانی کیوں میں اس پر امر کروں؟ میں ہم لوگ جیسا فرینڈ، ہم لوگ جیسا ہمیں بتاؤ کہ سودو فری تھنکر، یہ جو جھوٹی فری تھنکر، آپ کو سورہ فاتحہ نہیں آتا تو میں بے سواد لوگوں کا جواب نہیں دیتا جو ہوں. جھوٹے فری تھنکرز ہیں، سودو فری تھنکر، اس کا ڈیفینیشن دے دو پلیز. رئیسہ میں بے سواد لوگوں کو جو اپنا دین سے، ان لوگوں کو پتہ نہیں، سورہ فاتحہ اس کو پتہ نہیں ہے، میں اس سے بات بھی نہیں کر سکتا. وہ آپ میرے حیثیت کے برابر نہیں ہے. آپ تو معلم ہے نا، آپ تو آپ میرا حیثیت کے برابر نہیں ہے. آپ میرا حیثیت کے برابر نہیں ہے. آپ خود جھوٹا ہے، آپ خود جھوٹی ہو، آپ خود جھوٹی ہو، کیونکہ آپ کو سورہ چلو فاتحہ نہیں آج آتے اور ہمیں آتے. اتنا تو ریکگنائز چلو کیا ہے کہ دیر از ریکگنائز سمتھنگ کیا کہ کالڈ رئیسہ سودو بیگم فری کو، تھنکر نا، جو اسلام کو بدنام کرتا ہے، رئیسہ پرافت بیگم محمد کو الزام بنا دیتا ہے. اور تم کو کس نے حق دیا کہ مجھ سے سورہ فاتحہ سنو؟ تم تو سورہ مجھے فاتحہ آپ کا سننے اللہ کے نے بولا، قابل بھی آپ کے نہیں اللہ نے ہو. بولا ہے.
पूरे फातिहा सुनने के काबिल भी नहीं हो भाई साहब। नो पर्सनल अटैक, नो पर्सनल अटैक। जब वो एक मुझे सेकंड, बेसवाल एक सेकंड। करता है तो वो पर्सनल अटैक नहीं है उसी। It's double standard ना। रईसा, हम लोगों ने या किसी ने इस वक्त इस्लाम के ऊपर झूठा इल्जाम कब डाला है? बहुत झूठे इल्जाम मैंने सुने हैं इसके। मैं बेशक यहाँ पे बैठ के, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस्लाम के खिलाफ टॉलरेंस करूँ। एक सेकेंड, लेट अस टेक वन एट अ टाइम माय सिस्टर। और इधर उधर किसी की बात नहीं, लेट अस गेट टू द पॉइंट। आपने कहा यहाँ पर बहुत इल्जामात हुए, ये सूडो फ्री थिंकर्स, ओके। आप ये बताएं, ये मुझे reference नहीं दिया सूडो फ्री थिंकर्स का। मेरा प्यारा भाई, मैं अपनी आवाज ऊंची नहीं करनी चाहती। नहीं, लेट मी प्लीज गिव मी अ सेकंड। किसी को बात करने दे, कोई ना बात करे अभी। अगर मैंने कोई ऐसे बात की है मेरी प्यारी बहन रईसा, आप सबसे पहले मुझे बताएं वेयर डिड आई से समथिंग जो कि इस्लाम के रेफरेंसेस के साथ नहीं कहा गया। आप मुझे बताएं, मेरा बताएं कि मैंने कहाँ पर कुछ गलत बोला है, बताएं। इस्लाम के इस्लाम ये बात नहीं कर रही, नहीं, स्टॉप सिस्टर प्लीज, लेट अस बी स्ट्रेट टू द पॉइंट। कहां पर किस वक्त आज मैंने, एक सेकेंड रईसा प्लीज, मैंने इधर उधर तरफ नहीं चलना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएं कहां पर मैंने कुछ इस्लाम या कुरान या हदीस के मुताबिक मैंने कोई रेफरेंस बोले बगैर मैंने बात किया, ये मुझे आप बताएं। क्योंकि आपने इल्जामात की बात की कि हम गलत बात कर रहे हैं, हम झूठ बात कर रहे हैं, यू इंडिकेटेड दैट। आप ये बताएं कहां पर हमने जो है रेफरेंसेस के साथ मैंने बात नहीं की। आई एम टॉकिंग अबाउट मी राइट नाउ, मेरा बताएं। ऐसे मैं आपको एक फीडबैक दे दूंगी, आप मेरी बहन हो, आई लव यू, बट Yes, and I do the same. You know that. I respect you. I swear, I'm telling you, we can be so different. I still. मगर आपने भी बोला है कि हम लोग जो है this and that. मैं आपसे भी प्लीज मेरी प्यारी बहन एक मांग रही हूं, मैं आपसे 3 नहीं मांग रही। एक बात मुझे बताएं, एक बार अगर मैंने कोई बात की है, मैं आपको अभी इसी वक्त अपोलोजाइज करूंगी। सीरियसली, आप मुझे मैं बताएं आपको बताऊंगी। बोला है, कहां पर गलत बोला है? मैं मेंशन किया अर्लियर कि प्रॉफिट एक हदीस है जो उस हदीस में आए हैं कि कोई औरत को लीडर नहीं बनाना चाहिए ना। आपने सूरे लेट मी गो बैक टू माय नोट्स, बुखारी शरीफ से, और मैंने आपको करेक्ट किया, मैंने कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद ने कभी भी नहीं कहा कि औरत को लीडर बनाना सही बात नहीं है। उसने कहा था कि जो ग्रुप एक औरत को लीडर बनाएगा तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। और मैंने आपको बताया कि ये उस जमाने में उसकी शान नुज़ूल क्या थी ना। दिस वाज इन द टाइम कि वहाँ पे औरत को एक इंसान ही नहीं समझती थी, तो फिर उसका लीडरशिप का क्या फायदा होता था ना जंग के दौरे में। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है ना। क्योंकि अगर हम अपने आप को फ्री थिंकर कहते हैं एंड सूडो फ्री थिंकर नहीं कहते, तो हमको दूसरों के अकायद, उनके नजरियात से एहतराम करने से पेश आना चाहिए ना। जो लोग आते हैं यहाँ पे कहते हैं कि हम फ्री थिंकर है, वो रियलिटी में सूडो फ्री थिंकर यानी दुरूगीन आजाद अंदेश है। वो लोग झूठे आजाद अंदेश है जो दूसरी आप क्यों अटैक कर रहे हैं? आप क्यों अटैक कर रहे हैं? Let her talk. उसकी रिलीजन एंड लोगों का वो जो बिलीफ सिस्टम है उनको डिमीनिंग करते हैं और उन पे इल्जामात डाल देते हैं एंड उन पे कॉन्ट्रडिक्शंस ले लेते हैं। ये तो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल बात है ना। अभी मैंने फ्री थिंकर्स को सूडो फ्री थिंकर कहा, उनको कितना बुरा लगा। मेरे पीछे पीछे आते हैं जहां भी मैं जाती हूँ वो लोग। और मैं एक सवाल पोहनमल से करूंगी। पोहनमल क्या? ओके, लेट मी क्विकली आंसर योर क्वेश्चन। उजी मेरा स्क्रीन शेयर करना, ये मैंने डिक्लेयर किया था, ये रिकॉर्डेड लाइव है। इसको जरा दिखाना उजी स्क्रीन पे।
थैंक यू मेरी प्यारी बहन। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप लोग खुद भी जाके देख सकते हो, ये है सही बुखारी, ठीक है, सही बुखारी 7099, ठीक है, ये बुखारी है। इसमें लिखा हुआ है नरेटेड अबू बकरा ड्यूरिंग, इसको मैं जरा दूर करूं, ड्यूरिंग द बैटल ऑफ अल जमाल अल्लाह बेनिफिटेड मी विद अ वर्ड. When the Prophet heard the news that the people of the Persia had made the daughter of Khosrow their queen, ruler, he said, never will succeed such a nation as makes a woman their ruler. ठीक है, मतलब कोई नेशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा. नेवर विल सक्सीड सच अ नेशन एज मेक्स अ वुमन देयर रूलर. और ये बात मैंने कही थी. यहां पर आपने जो साइड में बातें की है ना रईसा, जो हिस्टोरिकली जो भी आपने बातें की हैं वो इस हदीस में कहीं नहीं लिखी हुई. आपने जो बोली है वो एक्स्ट्रा इसके ऊपर, एक सेकेंड, आपने जो भी बातें की हैं इसके ऊपर एक्स्ट्रा डाल की है. मैंने कोई बात एक्स्ट्रा डाल की इस पे बात नहीं की है. मैंने कोई किसी की तौहीन नहीं की, कोई मैंने गलत नहीं कहा. मैंने इसी बारे के अंदर है मैनिपुलेशन ना, इसको मैनिपुलेशन नहीं है, दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन. जब आप एक सूरा को और एक हदीस को शेयर कर ले उसी बहन, उसके शान नुज़ूल को डिसरिगार्ड करे तो इसको कहते हैं आप देख लें, ये सही बुखारी का 4400. ब्लर आ रहा है, ब्लरिंग आ रहा है, थोड़ा सा दूर करें. मैं पढ़ लेता हूँ. ये Allah's messenger sent a letter to Quraysh with Abdullah ibn Hudayfa as Shami and told him to head it over to the governor of al-Bahrain. The governor of al-Bahrain headed it over the Quraysh, and when he read the letter, he threw it into pieces. The sub trader, मैं ये काम नहीं पढ़ता हूँ कि edit think that Ibn al-Masih said Allah's absolute included Allah to tear them all totally crush and him completion in pieces. देख लें इधर आप, ये औरत, ये नंबर कौन सा है, ये नंबर कौन सा? 4424. ये मेरे पास फारसी में भी पढ़ा हुआ है. ये नंबर, ये हदीस देख लें. किस औरत इधर क्या बोलते हैं, गवर्नर या कोई सरपरस्त नहीं बन सकता है. ये रईसा जो अपने आप से झूठा कह के और हम लोगों को झूठा बोलते हैं. मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, 400 क्या है, ये 4000 क्या है? ये सही बुखारी है क्या है? सही बुखारी है. नंबर क्या भाई, 400 क्या है? 4425. ओके, मैं इसको खोलती हूँ उसी स्क्रीन पे, एक सेकेंड. क्योंकि आपका वो बोला, हाँ आप बोल दे रहा. और उसी बहन अगर इनको क्लियर आ जाएगा ना, दिखाई कर रहा है. सही बुखारी 4425, ठीक है. दिस इज नरेटेड बाय अबू बकरा एज वेल. वंस अगेन अबू बकरा. यहाँ पर लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द डेज ऑफ द बैटल Al Jamal, Allah benefited me with a word I had heard from Allah's apostle after I had been about to join the companions of Al Jamal and fight along with them. When Allah's messenger was informed that the Persians had crowned the daughter of Khosrow as their ruler, he said, such people as ruled by a lady will never be successful. And this is सही, ये कोई अपनी तरफ से कोई नहीं कर रहा. And this is as he mentioned, यहाँ पर लिखा हुआ है, the letter of the Prophet sallallahu alaihi wasallam to Khosrow and Kaisar. ये यहाँ पर उनके लिए लेटर आया था, ये बोल रहे हैं वहां पे. So this is not a propaganda, this is not a fake news, this
was not अभी man-made. आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठी है, इसके अगर हम लोग शान-ए-नुज़ूल झूठे क्या हैं, है? आप झूठी है, देख ले आप झूठी शान है। नजूल भाई फैक्ट बात किया जा रहा है आपके सामने है, why you denying it? ये तो मैनिपुलेशन है ना जो आप लोग करते Manipulation है। हैं। नहीं है, कैसे manipulation manipulation? कोई नहीं है रईसा। आप आपको अगर समझ मैनिपुलेट में करते नहीं आ हो रहा, आपने नहीं कुरान पढ़ा का, हुआ ये तो बहुत इंसल्ट है, ये फ्री थिंकर नहीं है, ये सूडो फ्री थिंकर है। ओके 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 रईसा हमने जो ये मुझे पढ़ा तौहीन है, कर रहे हैं, ये मुझे तौहीन कर रहे हैं अभी। अगर ये तौहीन है, अगर ये अगर फेक है, ये सारा गलत है, तो आप ये बताएं कहाँ से हम लोगों ने ये गलत बात की है? देखो, हर आये का शान नुज़ूल होता है। शान नजूल को छोड़ो, शान नजूल को छोड़ो, का तारीख है साइड और सबक में जो ये फारसी सल्तनत में जो वो मुश्किलात थे, उसी वक्त प्रॉफेट मोहम्मद ने ये कहा था कि ये टाइम, उसने कभी भी नहीं कहा कि वो नहीं हो सकती, लिखा हुआ है कि उसने ये उस कहा वक्त कि वो लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे, सक्सेसफुल नहीं होंगे, और ना होने से बहुत फर्क है बहन जी। आप तो नहीं। पढ़ी लिखी है ना, जो आप भी वर्ड पढ़ी से लिखी हम हो। लोग प्ले करते हैं और ये इसको मैनिपुलेट करते हो, इससे एक बहुत मिनट गुनाह होता है। रईसा एक मिनट, इस बहन इससे पूछे कि सही बुखारी में और शान नुज़ूल में इसका फर्क, दोनों का तारीफ बताए हम लोगों को, इसको नहीं आता, ये बेसवाद है। अरे भाई हम कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं भाई, हम तो फैक्चुअल बात कर रहे हैं, और आप जो बातें कर रही हैं ये उस जमाने के लिए था, ये उस जमाने के लिए था, तो प्रूफ तो करो कि ये उस जमाने के लिए था। अरे भाई सिस्टर रईसा मेरी प्यारी बहन, अरे हमारी राजधानी, बात जरूरत ही सुनो नहीं है। देखो ये रईसा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अगर आप ये बातें आप लोग, क्योंकि हम लोगों ने ये पहली दफा नहीं सुना, मैंने उसी ने ये बहुत पहले भी तो सुना है कि ये उस जमाने के लिए था, वो चाइल्ड मैरिज वो उस जमाने के लिए था, वो आज के लिए नहीं था। ओके ठीक है, सबसे पहले अगर यही बात है तो ये दिखाएं कि ये उस वक्त के लिए था, और अगर ये उस वक्त के लिए था तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि नमाज भी उस वक्त के लिए था, इस्लाम भी उस वक्त के लिए था। अब जो है टाइम के साथ फिर इस्लाम को भी बदलना चाहिए, फिर हम लोग इस चीज को उस दायरे की तरफ लेके जा सकते हैं ना, कि अगर हर चीज उस वक्त के लिए था, दाढ़ी भी उस वक्त के लिए था, सुन्नती भी उस वक्त के लिए था, नमाज भी 5 वक्त का उस वक्त के लिए था, ऑलराइट, उस वक्त के लिए था। रेफरेंस तो आप लोगों के पास नहीं है कि ये उस वक्त के लिए था, तो उसका मतलब ये हुआ अगर सब कुछ उस वक्त के लिए था, हर चीज टाइम के साथ बदल सकता है, उस वक्त के लिए था, तो फिर इस्लाम कुरान को भी आज के वक्त के लिए बदल देते हैं। क्यों भाई, कुछ गलत बोला? मोहम्मद भी उस वक्त के लिए था, मोहम्मद को आज क्यों मानते हैं? शान नुज़ूल है, इसी का यही मतलब है। जो शान नुज़ूल हम कहते हैं, ये कहते हैं कि ये एक मौके पर अप्लाई करते हैं और बस। इसकी आप तो पढ़ी लिखी है ना, चलो मैं बेसवाद हूँ, मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता ना, बट मुझे इतना समझ आती है कि मैनिपुलेशन क्या है, फ्री थिंकिंग क्या है, एंड सूडो फ्री थिंकिंग क्या है। चलो अरे मैं प्यारी बहन, यू आर नॉट अ स्टूपिड पर्सन जस्ट बिकॉज अगर आपका कोई हाई एजुकेशन नहीं है, ये मैं आपको कभी भी नहीं कहूंगी मेरी प्यारी बहन, मैं किसी को कभी नहीं कहूंगी अगर उसके पास कोई पीएचडी है, कोई बैचलर या फलाना ढिमकाना नहीं है। आई डोंट गिव अ रैट्स, ये चीज इंसान को होशियार या एजुकेटेड नहीं करता, या एक अच्छा इंसान नहीं बनाता एक एजुकेशन। ठीक है, इंसान की अपनी भी एक पर्सनैलिटी होती है सिस्टर। हम सब सीखते हैं। थैंक यू इसकी, मुझे बहुत इज्जत मिली। आप कर सकते हैं कि हम यहाँ पे 17 सेंचुरीज में जो नॉर्म्स थी वो उस जमाने के अरब पॉपुलेशन में, तो हम आज वो सीखेंगे और हमें पता चलेगा। हम तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, सोशल नॉर्म्स का तो हमें पता है ना, हर जमाने की अपनी सोशल नॉर्म्स होती है, जिस तरह स्टाइल वो चेंज होती है तो सोशल नॉर्म्स भी चेंज होती है। तो चलो आज हम देखते हैं कि सोशल नॉर्म्स मैरिज में 17 सेंचुरी में क्या थी। उजी आप अगर देखें आज के दौर पे, देखें आप देखो इसकी पढ़ी लिखे लोग ये समझते हैं कि आज के सोशल नॉर्म्स, आप सोशल नॉर्म की बात तो इंटेलेक्चुअली गुड। एक मिनट रईसा, रुक जाओ। देखिए बात सुने, जब फर्स्ट टाइम आप आई थी ना मेरे ब्लॉग पे, तो आपने ये कहा था कि आप तालिबान को सही समझती हैं। फिर मैंने अभी आपको बोला कि यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो गॉर्जियस लेडी,
बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, ठीक है ना। और मैंने ये कहा था, बल्कि मैंने इसकी को भी मैंने बोला कि देखो इसकी वीडियो कितनी प्यारी, इतनी खूबसूरत है। अब इसकी बोला था कि नहीं बोला था मैंने, आप या इसकी हम लोग से बात देखें। किया था, we spoke about it, we spoke about हमने it। बात किया था, लेकिन मैंने कहा कि देखो कि ये जो है तालिबान को ये फेवर कर रही हैं। अगर ये इसी हालत में जाके तालिबान के साथ रहे अफगान यहाँ पे, तो क्या वो ये रहने देंगे इसको ऐसे जैसे ये फ्रीडम के साथ रह रही है? हाँ रहने देंगे? देखो, बात यहाँ पर ये हो रही है कि हम लोग आपकी अकल पे दंग हैं। यू आर सो ब्यूटीफुल, नो डाउट, गॉर्जियस, लेकिन आपकी अकल पे हम लोग दंग हैं कि जिस वक्त से आप यहाँ पे मेरी ब्रॉड पे आना शुरू किया है आपने, एंड वी आर वेरी वेलकम यू, वेरी हैप्पी टू हैव यू हियर। यू आर सो ब्यूटीफुल, सच अ ब्यूटीफुल एंड गुड हार्ट पर्सन है वो आप। लेकिन आपकी जो एक आप हर गलत चीज जो लिखी हुई है कुरान में, जो हम रेफरेंस के साथ बता रहे हैं, इसकी ने भी बताया, अभी ये सारे जितने भी हमारे जो बैठे में जेंटलमैन्स, इन्होंने भी बताया रेफरेंस के साथ। आप हर चीज को जो है आप गलत और जो है करार देने के चक्कर में लगी हुई हो। आप बजाय उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ ऐसा ही लिखा हुआ है, चाहे वो पहले के लिखा हुआ, जैसे इसकी ने बोला कि अगर ये पहले के लिए था। कुरान की एक आयत में लिखा हुआ है कि ये कुरान है, ये जिंदा लोगों के लिए है। कुरान के अल्फाज हैं ये शायरी नहीं है, ये पोएट नहीं है, ये जिंदा लोगों के लिए कि जो जिंदा हैं जिस जमाने में, उनको अमल करने के लिए ये कुरान है। चाहे वो शादी का हुक्म हो, चाहे वो ज़कात देने का हुक्म हो, चाहे वो सलाह कायम करने का हुक्म हो, चाहे वो कोई सा भी हुक्म हो, चाहे वो कोई सी भी चीज हो जो कि रसूल ने किया कुरान में। और हम लोग कहते हैं बचपन से हमने सुना हुआ आता है, इसकी बताना हमने बचपन से सुना हुआ है कि जो हुजूर जो थे मोहम्मद, वो चलता फिरता कुरान थे, चलता फिरता कुरान थे, यानी कि उन्होंने कुरान पे अमल किया, ठीक है। और उसी के लिए अतवाती रसूल, जो अल्लाह को अतात करे और जो रसूल की अतात करे, यानी कि कुरान और हदीस दोनों से अतात करे, तो वो मुसलमानों को फर्ज किया गया है। जो हुजूर ने किया वो लोग करते रहेंगे सुन्नत। ये नहीं है कि वो उस वक्त के जमाने के लिए था और बात खत्म, दैट्स इट। अगर ऐसा ही होता तो वो जुमतुल खुतबा जो अलविदा जो खुतबा था, उसमें वो कह के जाते हुजूर कि भाई जो मैंने कर दिया बस वही खत्म, अब तुम लोग जानो, तुम्हारा काम जाने, इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सुन्नत रसूल वगैरह। ये कुछ कह के जाते, पक्का करके जाते, ठीक है ना। इसीलिए आज सारी मुस्लिम उम्मा जो है सुन्नत रसूल पे अमल कर रही है, जो उन्होंने अपनी जिंदगी में किया। दाढ़ी भी सिर्फ रख रहे हैं मूछे गायब, चिंपैंजीज की तरह, यानी कि दाढ़ी गायब, मूछे गायब और दाढ़ी रख रहे हैं। अच्छा, उनका हुलिया भी शलवार ऊंची रख के मस्जिद में जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि सुन्नत रसूल। सीधा पैर रख रहे हैं, क्यों? क्योंकि सुन्नत रसूल। तो वो तो शुक्र करो कि पता नहीं 3 पत्थर से पिछवाड़ा साफ कर रहे हैं लोग, वो पता नहीं वो साफ होता भी नहीं होता। लेकिन मुझे पाकिस्तान में किसी ने मौलवी ने बताया था कि जो आप टॉयलेट जाएं तो सुन्नत ये है कि 3 पत्थर लें, उससे आप पिछवाड़ा साफ करें। ये बातें लोग, अच्छा टोपी भी जो है उसी तरीके से पहनेंगे जैसे कि हुजूर पहना करते थे। दाढ़ी का जो कलर, जो मेहंदी का कलर है, वो लोग मेहंदी का कलर भी दाढ़ी में लगाते हैं, क्यों? क्योंकि वो सुन्नत रसूल है। आंखों में सुरमा लगाते हैं, क्यों? सुन्नत रसूल है। ऐसी छोटी छोटी सारी हर चीज जो है वो अभी तक फॉलो कर रहे हैं सुन्नत रसूल। तो ये सारी चीजें क्यों नहीं सुन्नत रसूल? ये तो भी सारी बातें हैं, खत्म तो नहीं हुई। ये उस जमाने के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए, जब तक मुसलमान जिंदा रहेगा तब तक आखिर वक्त तक उसको सुन्नत रसूल पे अमल करना है। तो ये उस जमाने के लिए नहीं है। देखो उजी, मेरा हदफ ये है, आपने मुझे खूबसूरत कहा, वो कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं अगर खूबसूरत हूँ या नहीं हूँ। नहीं, वो तो हम भी खूबसूरत हैं, सिर्फ आप थोड़ी हैं। हम तो आपको कह रहे थे कि अगर तालिबान के पास चली जाती, आपने फिर गलत नहीं लिया, आपने फिर भी समझा नहीं। हमने कहा सुनो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ या इसकी खूबसूरत नहीं है। अगर मैंने आपको खूबसूरत कह दिया, मैंने कहा ये कि आप खूबसूरत हो, और आपने जिस तरीके से अपनी वीडियो बनाई है बाकायदा वेस्टर्न कंट्री के लिहाज से, ठीक है ना। अगर इसी हालत में जिस तालिबान को आप फेवर देती हो और आप अच्छा समझती हो, उन तालिबान के साथ आप मिलके वहां रह के दिखाओ जाके अफगानिस्तान में,
तो फिर आपको असल इस्लाम पता चलेगा। आपको शटल को बुरका ना पहना दिया ना और कहा कि बिल्कुल चुप, मुंह बंद, किसी मर्द से बात नहीं करनी। यहाँ पर तो आप अब्रॉड पे आके बात कर रही हो मर्दों से, वहां तो आपको मर्दों को बात करने की भी इजाजत नहीं होगी। तो जिस तालिबान को आप फेवर दे रही हो ना, वो है इसकी ये हकीकत है। देखो ओजी, क्या कोई मुसलमान आजाद फिक्र हो सकता है, फ्री थिंकर नहीं हो सकता नहीं हो है? सकता है, नहीं हो नहीं, सकता, क्योंकि वो मुसलमान गुलाम है, आपका वो नहीं गुलाम नहीं है। नहीं, उसी बहन नहीं हो सकता है, क्योंकि मुसलमान जो है कुरान पे पाबंद है, वो कोई आजाद फिक्र नहीं कर सकता है। वो जो उसको अल्लाह ने उसके लिए हुक्म किया हुआ है, उसके लिए इजाजत दिया हुआ है, वो उसी तरह से वो बात कर सकते हैं। वो अपना जहन से, अपना आजाद फिक्र से, इस्लाम ने उसको कोई भी इजाजत नहीं दिया हुआ है कि वो पढ़ ले। इस बहन ये हदीस भी आप एक्सेलेंट पढ़ ले, जवाब दिए आपने तो हनुमान, सही बुखारी से, आपने सही ये बुखारी प्रूफ से। किया एक कि मिनट आप एक मिनट सूडो एक मिनट फ्री बेसवाल, थिंकर एक है। मिनट बेसवाल, आप फ्री थिंकर नहीं है, आप बेसवाल, सूडो एक फ्री मिनट थिंकर है, एक यही मिनट जवाब बेसवाल, है। एक मिनट बेसवाल। 5136 ये हदीस अगर आप पढ़ ले इस बहन, ये हदीस सही बुखारी का है। ये यूसुफ मायूस जो आया, इसका वीडियो में अभी ये मौलवी है, मगर इसका डांस का वीडियो मेरे पास है, इसको भी मैं आपको लिए शेयर करता हूँ। मौलवी डांस इसकी मौलवी 4 डांस। वीडियो है मेरे पास, 4 मैंने इसका वीडियो बहन को लाया था घर में, इसकी बहन को लाया था घर में, उसके लिए मैंने डांस। ये देखो तौहीन कर रहे हैं, अपना माँ को कमल की तौहीन बहन कर को रहे हैं। मैंने लाया था घर में, उसके लिए मैं देखो जी, देखो ये डांस तौहीन किया कर था रहे हैं, मोहम्मद बहन इसको के नीचे लिए। कर ले, उसमें ये हाँ, तौहीन कर रहे हैं। तो तुम लोग तो करते हो ना, ओ, मौलवी है, तुम तो करते हो ना ये। तुम लोग तो अपनी माँ को भी चोट देते हो, तुम अपनी बहन को भी चोट देते हो, तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है। हाँ बोलो बोलो। ये लार्सन को म्यूट कर ले, ये गाली दे रहा है नीचे, ये लार्सन जो है, लार्सन ये म्यूट कर ले, इसको नहीं ला, ये तो गाली फ्री देता है। थिंकिंग नहीं हुआ, किसी को म्यूट ये करना तो फ्री थिंकिंग नहीं है। आप पोहनमल, आप तो आप तो बेसवाल खुद थे, अपने आप लोग आप तो को आप तो कॉन्ट्रडिक्ट करते बेसवाल हो थे, रईस और आप तो इसी को बेसवाल कहता है बेसवाल सूडो थे। फ्री थिंकर। नहीं 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 नहीं, सोदो जो है ना, बात सुने, सोदो फ्री थिंकर अगर हम उस तरफ ले जाए ना, जहां तक मैं समझ रही हूँ, फिर तो आपके सो कॉल्ड मुस्लिम्स भी जो है ना, वो फिर कहीं के नहीं है। नॉट एवरी वन, आई एम टॉकिंग अबाउट सर्टन मुस्लिम्स। आप ऐसे करेंगे, अगर कोई दरमियान में कोई अगर माइंड ना करे, मैं इनसे एक सवाल कर सकती हूँ मेरे प्यारे भाई, अगर आप लोग जरा माइंड ना करें इस चीज को। मैं नहीं माइक नहीं खोलूंगा, वो हदीस भी आप पढ़ ले, 51 कमेंट में लिख दे भाई, कमेंट पे लिख दे, जरा कमेंट पे एक दफा लिख दे, कमेंट में। डिलीट हो जाता है, वो कमेंट मैंने लिख दिया, डिलीट हो जाता है। कौन सा नंबर है हदीस का? 5136 सही बुखारी। ये ठीक है, हमराज भी एक बात करना चाहते हैं, बोलते हैं मुझे भी माइक। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमराज बात करना। तो रईसा, मैं आपको आपसे एक बात पूछूंगी, मुझे बहुत मजा लगा कि मैं यहाँ पे थी। एंड पोहनमल साहब, आई होप आई हैवंट हर्ट एनीवन। मैं यहाँ से जाना चाहूंगी क्योंकि ठीक है बहन, कोई बात नहीं, नहीं है, नहीं, आई होप आई डिडंट ऑफेंड एनीवन, क्योंकि नहीं, नहीं, आप इस्लाम को शर्मा दिया, आपने इस्लाम को शर्मा दिया, आप जा सकते नहीं, प्लीज डोंट से लाइक दैट। लिसन, आई एम वेरी Don't say it. I love you, Ozzy. I love you, SK. You're both my sisters. Love I you love you too. guys dearly. पोहनमल साहब, मैं आपका बहुत इज्जत करती हूँ। हमराज, बहुत अच्छा लगा आप सब मैं भी से आपकी बात इज्जत करके। करती हूँ, मगर प्लीज शुक्रिया भाई इस साहब। चीज को पढ़ के फिर आप बात करो। बिल्कुल मैं करूंगी। एंड अपना ख्याल रखे रईसा, एंड हैव अ ब्यूटीफुल वीकेंड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरी सिंगल टाइम आप प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है। रिमेंबर, एग्री टू डिसएग्री, बट वी, मी एंड वी डू रिस्पेक्ट यू। फ्री थिंकिंग माय सिस्टर। जो कोई कहता है कि मैं फ्री थिंकर हूँ, उसको सब की बिलीफ, सब की अकायद को इज्जत करना है ना, ये दिस इज फ्री थिंकिंग। जो अकीदा सूडो इज्जत फ्री के लिए नहीं थिंकर्स है, होते अकीदा हैं वो इज्जत के लिए नहीं है, अपनी नहीं, मनाफे के लिए दूसरों की इज्जत नहीं करते, उसके मजहब और उसके अकायद का वो मजाक उड़ा देते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। वो तो गुनाहगार भी होते हैं अल्लाह के पास, एंड इस माशरे में भी उन लोगों को अच्छी नजर से नहीं देखते। इसी वजह से उन लोगों को कहते हैं कि सूडो फ्री थिंकर्स। खुदा जबरदस्त, इस पे हम लोग बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने आज बात की है, एंड वी विल पिक इट अप इन अनदर वे।
सो थैंक यू सो मच रईसा। और मैं ये भी कहूंगी, किसी ने कमेंट्स में मेरे चैनल का बात पूछा कि भाई मेरा यूट्यूब का नाम क्या है। भाई मेरा यूट्यूब जो है ना, मैं अभी इसको बंद कर रही हूँ बिकॉज इट्स गोइंग वेरी स्लो। सिर्फ स्मॉल वीडियोस अपलोड होती हैं और कुछ नहीं होता उसमें। मेरा लाइव टिकटॉक पे ज्यादा चला करेगा क्योंकि इट इज मोर फन एंड मोर पीपल ज्वाइनिंग और एंड वी कैन टॉक अबाउट ऑल काइंड ऑफ टॉपिक्स। तो मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो मेरा बेसिकली अभी बंद हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग आउट एनी चैनल नेम्स एट ऑल। तो टिकटॉक पे मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा, चंद घंटे बाद मैं भी लाइव जाऊंगी, तो उधर अगर किसी ने ज्वाइन करना होगा तो सर आंखों पे आ जाइएगा, ठीक है ना। यार एंड मैं आखिरी कमेंट देता हूँ, फिर मैं चलता हूँ। ये जी तो भाई, इसके हाथ में कोई तस्बीह थी या माला थी। सूडो साइंस शी रिपीट मोर देन 30 टाइम्स। देखें मैं आपको एक बात बताऊं, आपका इसका जवाब देती हूँ। फ्री थिंकर मेरा प्यारा भाई और हमराज, आप भी मेरे प्यारे प्यारे भाई और जो कमेंट्स में भी है एवरीवन, देखें एंड आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल, लेट मी बी वेरी क्लियर। जिसने जो कपड़े पहनना है खुश रहो, बुरके में, निकाब में, अंडरवेयर में, बिकिनी में, फ्रॉक में, स्लीवलेस में, आई डोंट गिव अ फ्लाइंग फ्लूक। जब तक आप अपने स्किन में खुश हो, दूसरों के सर पे थोपो नहीं। आई डोंट गिव फ्लाइंग फ्लूक, ओके, खुश रहो। मगर एक इंटरेस्टिंग बात है, टॉकिंग अबाउट इस्लाम एंड ऑल ऑफ दिस एंड तालिबान को सपोर्ट करते हुए, ये मैं कुछ बोलना चाह रही थी मगर इनको जाना था, क्योंकि इनकी वही तस्वीरें जैसे कि उजी ने कहा कि स्लीवलेस में है, फुल मेकअप में है एंड ऑल ऑफ दैट। वंस अगेन शी कैन डू व्हाट शी वांट्स। आई सपोर्ट एवरीवन इन एवरी एंगल दे वांट टू बी, ठीक है। मैं भी सपोर्ट करती हूँ, मैंने इसलिए थोड़ी बोला था। आई नो हनी, आई नो। मगर बात ये आता है बात यहाँ पर ये आती है कि अगर आपको तालिबान पसंद है, आपको शरीयत पसंद है, आपको इस्लाम इतना पसंद है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट आर यू डूइंग इन वेस्ट, एक बात। दूसरी बात, अगर आपको इस्लाम और आपको शरीयत पसंद ही है, why not wear no makeup, no plucking, none of these things, changing your face, क्योंकि ये हदीस इजाजत नहीं देता। मोहम्मद ने कहा है कि अपने फेस को चेंज मत करो, मेकअप मत करो, प्लकिंग इजाजत नहीं है, टैटू इजाजत नहीं है, these things are not permitted। स्लीवलेस कपड़े पहनना, अपना जिस्म यू दिखाना, इट्स नॉट, नहीं इसको हटा दें भाई, इसको जरा हटा दें, एक सेकंड भाई मेरा। तो बात यहाँ पर आती है कि जब ये चीजें इस वक्त इजाजत नहीं है इस्लाम में, इस वक्त नहीं मतलब वैसी इजाजत नहीं है, वाई यू नॉट शोइंग द फेस ऑफ इस्लाम, वाई यू नॉट एक्टिंग लाइक अ मुस्लिम, वाई यू नॉट एक्टिंग लाइक द मुस्लिम जो कि शरीयत में होना चाहिए अभी से। और जब हम लोगों ने तालिबान की बात भी की कि आप उधर पसंद करते हो, तो आप वहां पर जाना क्यों नहीं चाहते हो? नहीं, अगर मुझे वही घर और गाड़ी, वही शौहरत, वही लिविंग स्टाइल, पर वही वेस्टर्न स्टाइल हो गया ना, मतलब ये तो वेस्टर्न स्टाइल हो गया ना। मोहम्मद जी अपने जमाने में कैमल राइडिंग करते थे, दूसरे किस्म के हॉर्स पे राइडिंग करते थे, तो फिर उन्हीं लेवल पे चल जाओ ना, मतलब पिछवाड़ा साफ करते थे, मतलब गो ऑन हिज लेवल ना, गो एंड लिव लाइक हिम ना, बिकम लाइक हिम ना, देन आई विल से ओके ठीक है, यू आर फॉलोइंग दैट पैथ। मगर अगर आप उस रास्ते पे नहीं चल रहे हो तो डबल स्टैंडर्ड क्यों है? ये क्यों है कि भाई आई हैव टू हैव अ कन्वीनियंट लाइफ? ओके, यू वांट टू हैव द बोथ साइड्स, मगर आप इस्लाम भी करते जा रहे हो। आप गोरों के मुल्क में भी रहना चाहते हो, उनकी ऐश आवाज भी लेना चाहते हो, मगर इस्लाम की भी बातें करते हो। दैट डजंट वर्क लाइक दैट। जी भाई, जी बोलो। यही मुश्किल है हम लोगों का। जो कोई अमेरिका में, ये रईसा जो अमेरिका में है, अमेरिका में बैठा हुआ है और इस्लाम से दिफा करे, और कोई एक दिन भी ये जैसा और लेडीज मेरे माँ मेरी बहन की तरह अफगानिस्तान में उधर गुजारा या पाकिस्तान में नहीं किया है कि उस पर किस तरह जुल्म है, मगर इसका पानी गर्म है, इसका रोटी इसको मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, मगर आता है क्या करता है, इस्लाम से दिफा करता है और तालिबान को बोलता है ये अच्छा कानून है, क्योंकि इस पर नहीं है वो कानून। हम लोगों का दूसरा औरतों पर है, मेरा माँ पर है, मेरा बहन पर है, मेरा वो पाकिस्तानी बहनों पर है, मेरा अफगानी बहनों पर है, इस तरह का जुल्म इस पर नहीं है। ये इसीलिए आता है, आपने देख लिया सूरह फातिहा, इसको पढ़ना नहीं आता है इस्लाम से दिफा करते हैं। मैं चैलेंज देता हूँ कि इसको नहीं आता था सूरह फातिहा, और शान नुज़ूल और हदीस सही बुखारी में इसको पता फर्क ही नहीं चलता था, और आता है हम लोगों को सूडो झूठा बोलते हैं, मगर ये खुद झूठी है। पे बात करेंगे व्हाट इज सूडो, इस पे हम बात करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, चलेंगे हम लोग। हाँ, और मैं आपसे रुखसत लेना चाहता हूँ। मैं हमेशा, आप अगर लाइव रखते हैं मेरे लिए शेयर कर ले, मैं आऊँगा, मैं सब। और ये जो लोग जो आता है इधर, ये रियासत ये भी वही लारसन है, इसका दूसरा अकाउंट है। इन लोगों को, सब लोगों को हम लोग जानते हैं, ये गाली दे रहे हैं। अभी देखे
जिंदाबाद इंडी। गाली दे रहा है, देखो फ्री थिंकर जो गाली हम लोगों को बैठ के देना, वो अपने आप को गाली दे रहा है, वो अपने आईने में देख रहा है, वो फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है ना। आप हम लोगों का ब्राड में भी आए उजी जरूर, मैंने आपको फॉलो कर लिया है और हमराज को भी फॉलो कर लिया है, नो प्रॉब्लम। एंड आई विल बखैर माशमारा जॉइन में कोनो जो भी फारसी टूटा फूटा मुझे आता है तो माफ कर देना। खूब फारसी में शायद इस बहन आप बहुत मेरे लिए बहुत ही महान है, क्योंकि आपने कुरान पढ़ा हुआ है, सही बुखारी पढ़ा हुआ है, रेफरेंस के साथ आप बात कर रहे हैं, ये मुझे आप पे फख्र है, मुझे बिल्कुल फख्र है। और हम हाँ और उजी तो मुझसे भी आगे है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं उजी का क्यों इतना अच्छा मैच है, मुझे कुछ चीजें पता है, मगर उजी मेरे से एक स्टेप कैसे आगे, उसको तो अरबी भी आता है भाई, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बिल्कुल यस यस यस, अरबिक वो पकड़ लेती है, जब कोई इधर उधर का लाइन मार रहा होता है तो उजी अच्छा खासा पकड़ लेती है। सो शी इज वेरी वेरी गुड एंड वेरी मच। मैं नरम वाली हूँ, उजी जो है वो जरा सख्त वाली है। बहुत अच्छे उसी बात में आप दोनों पर फख्र करता हूँ। और नहीं, हम भी कोई बात कहना चाहते हैं, मैं आप ही के साथ हूँ और आपकी हम फिक्र हूँ। और अगर कोई रेफरेंस, कोई किताब, हम लोगों का किताब खाना भी है, वो इंटरनेट में, टेलीग्राम में हम लोगों का सब कुछ है, साइट भी है, एक्स मुस्लिम साइट भी है, हम लोगों का सब कुछ है। हम लोगों के पास फलसफा की किताबें, इल्म की किताबें, सब कुछ है हम लोग। ये प्राइवेट में टेलीग्राम का नंबर भेजना, बिकॉज आई एम ऑन टेलीग्राम, तो टेलीग्राम में अगर आप हैं तो मैं भेज देता हूँ। आप अगर अपना प्राइवेट में अपना टेलीग्राम का आईडी मुझे बताएं, मैं आपको ऐड कर सकता हूँ वो किताब खाने में। ठीक है। इसकी यस हनी, आई हैव टेलीग्राम, अभी तक हटा नहीं है। और हम लोग मैं 10 साल से यही मेरा